2009, You're young, it's the first time you're there. A sense of responsibility? 2014, Why we will travel on board this wondrous legacy, trying to gauge the mood of a people getting ready to cast the most anticipated of votes. You know, we just met your SPG and they're perplexed. 2019, जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी का नहीं है इतना ज्यादा. Women politicians going to stick up for each other. 2009 to 2024. 15 years. There's something fascinating about the Indian elections. One such thing is this little auto. That's the beauty of the Indian elections. I've become older, This is what is politics. You have two men in one frame which you never thought could happen. and so has the world's largest democracy. My country's political, social, cultural landscape has changed. For better or for worse, you are the judge. Because you, the voter, wrote the script. We just documented the story. Will the sands of time shift again? Or will time be on the side of the incumbent? As India stands on the cusp of its electoral destiny, I chronicle those who write it. I chronicle those who will fulfill it. There is one word that has stuck, and that word is Kismat. Tracking the course of India's destiny, Kismat, or political will. Once again, Election Dispatch, chronicling India's political story. 2024, somewhere in western Uttar Pradesh. Uttar Pradesh's proverbial Jat belt, in the heart of UP's sugarcane constituencies. What was the epicenter of UP's farm unrest, and since 2013, what has been the cradle of communal fervor. काफी जो कह रहे हैं कि गठबंधन तोड़ दिया, किसान का जो मुद्दा उठा था बीच में, वो जो दिल्ली में जो किसान का मुद्दा उठा था, उसके बाद बीजेपी चले गए जैन. सही किया गलत किया? देखो, आदमी वहाँ जाता है जहाँ इज्जत मिलती है. अखिलेश में गठबंधन था, वो कैंडिडेट अपने देखता था, सिंबल इसका देखता था, इसलिए वो उसमें चलेगा. इसीलिए चला गया. वहाँ सही काम किया. वहाँ इज्जत मिली उसे, वहाँ पे चला गया. जहाँ इज्जत मिली उधर चला. उधर चले जाओ. मुजफ्फरनगर में इज्जत की बात बहुत होती है जी. अभी देखो एक बात है, देहात में गाँव वाले रहने वाले हों या वो सो रहने हों, गाँव में सबसे मेन चीज है इज्जत. सबसे मेन चीज है इज्जत. इज्जत. जो इज्जत दे उसके साथ. हाँ, जिसकी इज्जत बेइज्जत हो वो तो अपना जीना भी वो मानता है. Begin with an old political cliche. The road to Delhi comes in from the state of Uttar Pradesh with its mammoth 80 Lok Sabha seats. The first phase of polling, the 19th of April. It is the region of western Uttar Pradesh that is going to vote on the 19th of April. It's a region which is steeped in farm, identity Jat politics. Its voter here, aggressive, vocal. It's a region that's never shy of an election. An election here is intense, it's in your face. It is a region where the campaign is high decibel and deafening. We begin with the seat of Muzaffarnagar, the dress rehearsals of which had happened in 2022 state elections, but it didn't quite augur well for the Bharatiya Janata Party, only with the 6 Vidhan Sabha seats where Muzaffarnagar is concerned. This time around, things are seemingly different. Or are they? Alliances have come together, alliances have been broken, alliances have been brokered again.
Muzaffarnagar Lok Sabha constituency has over 18 lakh voters, including 5 lakh Muslims, 2.5 lakh Dalits, 5.5 lakh OBCs, 2 lakh Jats, 1 lakh Vaishyas, 1 lakh Thakurs, and 1 lakh Brahmins or Tyagis. Of the 5 constituencies that make the Lok Sabha seat of Muzaffarnagar, 4 went to the RLD-SP alliance in 2022 state elections. But since then, the RLD is now with the BJP. Politics makes strange bedfellows. 2019, Sanjeev Balyan defeated Chaudhry Ajit Singh from Muzaffarnagar at just a little over 5,000 votes. The RLD alleged the election was rigged by the BJP. A bitter rivalry born out of Western UP's farm chat politics is now witnessing a strategic thaw. हम जैन चौधरी का लिया है, एनजीए पार्टी का लिया है, हम एक थे दोनों एक जगह हो गए। 2019 में देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन अनथिंकेबल था कि जयंत चौधरी और संजीव बालियान इकट्ठे एक रथ में कैंपेन कर रहे होंगे, क्योंकि 2019 के इलेक्शन में इन्होंने आपके पिताजी को मात्र 6,000 वोटों से हराया था। 5-5 लाख वोट दोनों के पड़े थे। राजनीति है या क्या है? जब नंबर 1 और नंबर 2 दोनों मिल जाएंगे तो जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे, आमने सामने थे, जब हाथ मिला के साथ चलेंगे तो गति के साथ चलेंगे और कुछ अच्छा करने के लिए चलेंगे। बालियान जी कभी सोचा था जो बिल्कुल टक्कर का एक जो फाइट होता था मुजफ्फरनगर में, जो चौधरी अजीत सिंह के आप खिलाफ थे, कि ऐसा कभी होगा जयंत जी के साथ बैठकर एक चुनाव लड़ेंगे मुजफ्फरनगर? आप हमारे गांव नहीं जानते। हमारे गांव हमारा किसान यही चाहता था कि दोनों पार्टियां एक हों, क्योंकि यहाँ का जो किसान है, जो भी वर्ग है, वो लोकदल को दिल से प्यार करता है। चौधरी सिंह की वो चौधरी जी ऐसे नायक हैं यहाँ, उन्हें आप ये कह सकते हैं भगवान के बराबर का दर्जा है इस क्षेत्र में। तो लोकदल से भी प्यार करता था और मोदी जी से प्यार करता था। तो जनता की भावनाएं नीचे यही थी कि दोनों दल किसी तरह से एक हो जाएंगे। पर जो आपका वोटर था जयंत जी, जिसने झंडा लेकर, जो आपका काडर था, बालियान जी के अगेंस्ट कैंपेन किया था, वो इनके फेवर में झंडा उठाएंगे? देखिए, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती, मुद्दों के लिए हम राजनीति करते हैं कि हमारे मुद्दे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सपा एक सवाल बार बार कह रही है कि फर्क नहीं पड़ता, जो आरएलडी जयंत चौधरी जी के वोटर हैं वो पहले ही भाजपा को वोट दे रहे हैं। तो अच्छा है, तो फिर हमारे वोटर और उनके वोटर को फर्क ही नहीं है, फिर तो और मजबूती के साथ हम लोग एक हो गए। और वो टेंशन ना लें हमारे लिए। मैं आपसे पूछूंगी बालियान साहब, चौधरी चरण सिंह को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। चौधरी चरण सिंह का जो लेगेसी मान लीजिए, एक ये भी थी कि सारा समाज को इकट्ठे लेके चलना है। जब भी चौधरी चरण सिंह एक स्टेज पे होते थे, जयंत जी ने आज फिर बोला कि हर समाज का हर व्यक्ति उस स्टेज पर होता था, वो मुसलमान भी था। अब परसेप्शन वाइज कहा जाता है कि मुसलमान थोड़ा बीजेपी के साथ नहीं चलता। आरएलडी क्या वो वोट ला पाएगी या वो वोट छिट जाएगा आरएलडी से? राष्ट्रीय लोकदल के आने के बाद ये एक परिवर्तन हुआ है। काफी बड़ी संख्या में मुस्लिम राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए थे और लगाव भी करते थे इस पार्टी का। तो मुझे इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट गठबंधन को उम्मीदवार को मिलेगा। मेरे यहाँ तो मुझे मिल रहे हैं, बाहर का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इस बार मुजफ्फरनगर लोकसभा है, काफी बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट। आप मुस्लिम गांव में जाकर पूछिए, बड़ी संख्या में मुस्लिम गठबंधन को वोट देगा इस बार। आपको लगता है जो मुस्लिम वोटर है जो आपके साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि आप अभी अगर एक मैसेजिंग देंगे उनके लिए भी देंगे, हमेशा स्टेज पे जाते हैं उनके लिए भी बोलते हैं, आपको लगता है वो वोटर आपके साथ रहेगा इस गठबंधन के बाद? अभी हम कैराना में मीटिंग करके आए, बहुत बड़ी तादाद में भीड़ में भी वहाँ अल्पसंख्यक मुसलमान दिखाई दे रहे। हमारे वर्कर भी हैं, नेता भी हैं, और हमने उनके लिए काम भी किया है, काम आगे भी करेंगे। मैंने अपने सभी विधायकों को कहा है कि 51%, 51% अपनी निधि वो अल्पसंख्यक जो उनके क्षेत्र में रहते हैं, उस समाज में, और अनुसूचित जात जो वर्ग है, दलित वर्ग है, वहाँ उनके विकास और उत्थान के लिए लगाएं। Jayant Chaudhary campaigning for Sanjeev Balyan in Muzaffarnagar.
how RLD's voters react. Till now, what was a fight for Chodraha or Mooch remains to be seen. राम राम जी। अच्छा ये बताओ, पहले ये बताओ कि 2019 में किसको वोट दिए थे? हमने तो नलके को दी थी। नलके को दी थी। हाँ नलके को। नलका चपर गया। अब नलका नहीं देंगे। नहीं नलके को ही देते। बिल्कुल भी नहीं देता। गद्दार निकल गया। गद्दारी कर गया। क्या गद्दार किया? जब बीजेपी में जा लिया वो तो गलत करा ना, लोक दल से निकल कर जा लिया। डेढ़ महीने तक जो चौधरी जयंत वो थे सपा के साथ, अब वो बीजेपी के साथ आ गए हैं, तो उसको किसान कैसे देख रहा है? सही किया, गलत किया? बजी जैसे उन्हें ठीक लगा, सबके अपने विचार हैं, वो पॉलिटिकल लोग हैं। राजनीति जहां पे उनको लगा हाँ भाई ठीक है, यहाँ मुझे इस बार ये रहना चाहिए, कुछ इन लोगों ने ठीक काम करे और कुछ और उनके आने से और ठीक काम हो सकते हैं, इसलिए वो जो है इधर बीजेपी के साथ है। इस बार क्यों फंसा हुआ है चुनाव? ऐसा चुनाव फंसा हुआ है, दोनों जो है जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। हरिंदर मलिक भी पुराने नेता हैं बहुत। तो फिर साइकिल और सपा नहीं है उनको? हरिंदर मलिक, हरिंदर मलिक और बाजान है। सपा का कुछ नहीं है। सपा का कुछ नहीं। ना। आपको लगता है इस सरकार ने किसानों के लिए किया है कि इनको एक और मौका देना चाहिए सेंटर में, क्योंकि ये मोदी जी का चुनाव है? दरअसल जो सरकारें अपने मैनिफेस्टो में वादे करके आ रही थी, तो उन मैनिफेस्टो पे सरकार पूर्ण रूप से किसानों के साथ काम नहीं कर पाई। और कुछ करा उन्होंने, यदि एक नंबर देने की बात हो तो आपका ये मान के चले 70-75% काम करा, परंतु एक उम्मीद के साथ जो किसान की उम्मीद लगी हुई है, और भी बहुत कुछ बेटर हो सकता है। वो आपका कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा में हो, और आपका चिकित्सा किसी भी फील्ड में काम हो। नहीं है पर नाखुश भी नहीं है। वो खुशी नहीं है जी, जो होनी चाहिए, जो एक होनी चाहिए। तो फिर क्या इस बार किसान बदलाव मांगेगा? नहीं, इस बार एक बार और मौका देना चाह रहा। आप एक बार और मौका? एक बार और मौका जा रहा, क्योंकि पिछली जो सरकारें आई उन्होंने बड़े लंबे समय जो है रही, तो उनकी तुलना में अभी और मौका मिलना चाहिए। आपको लगता है? उम्मीद है जी, उम्मीद है। तो बाल्यान जी को तीसरा मौका मिलना चाहिए। हाँ, उम्मीद है जी 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 कि मिले। This election, majorly we are going towards BJP. You know that BJP done a lot of things for farmers and also for the youth. In the past election, we were uncertain about to give the vote, but right now we are 110% sure to give the votes towards BJP. अब आर्मी की नौकरी थी, आप बताओ कितने साल की नौकरी थी? अब 22 साल की उम्र में बच्चा जो है रिटायरमेंट होकर आगे घर बैठ गया। आजकल के बच्चे हैं 28-30 साल की, तो नौकरी करके शादी कर रहे हैं। अब मान लो कोई लड़की वाला आके देखने लग गया, कहेंगे नौकरी, लड़का क्या कर रहा है? नौकरी, आर्मी से रिटायर है, क्या पेंशन है उसको? बताओ। बैंक है, प्राइवेट में जा लिए, रेलवे है, प्राइवेट में जा लिए, तो कौन करेगा? बताओ। हर इंसान को, और कोई अपनी लड़की घर से बाहर निकालने लगा, किसी लड़के को देगा, वो पैसे तो देखेगा ही। लड़का क्या कर रहा? नौकरी, लड़का हमारा बेरोजगार है, क्या करेगा वो? पढ़े लिखों की नौकरी नहीं लग रही, अनपढ़ की तो क्या लगेगी? बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है, बिल्कुल है जी। ये चुनाव जयंत जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है। नहीं, हमारे लिए तो जयंत और मोदी जी एक ही हो गए, तो एक ही चुनाव हमारे लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जयंत है, मोदी जी है। मोदी जी वैसे पसंद है? नहीं पसंद। नहीं पसंद। क्यों? उन्होंने किसान के लिए क्या किया? फिर मैं एक बार कहूँ, हम किसान हैं, हमें किसान के मुद्दे पर लड़ाई चाहिए हमें। पर क्योंकि अब जयंत जी मोदी जी के साथ हैं, तो आप उनके साथ हैं? हम उनके साथ हैं। और आपको लगता है कि जयंत जी के मोदी जी के साथ होने से आपको कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, जब जयंत ने गठबंधन किया था, कुछ तो उन्होंने मुद्दे हासिल किए ही होंगे अपने, कुछ तो बात तय हुई होगी उनकी।
तो आपको लगता है आपके लिए फायदा होगा? हाँ, कुछ तो होगा किसानों के लिए, मेरे लिए, सब किसानों के लिए होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। किसानों के लिए फायदा होगा। पर यही है मेरा बीजेपी को तो ये कहना है कि रोजगार पे बेरोजगारी जो है किसान मतलब नवयुवकों की, इस पे थोड़ा ध्यान दे। ये पेपर लीक हो रहे, ये बहुत गलत चीज है। तो बीजेपी से खुश नहीं है? बीजेपी, हम तो लोकदल की वजह से है जी, लोकदल की वजह से वोट जाएगा अपना, बीजेपी से कोई वो नहीं है। हाँ, उसके मुकाबले योगी ठीक है। योगी पसंद? योगी ठीक है। ठीक है। हाँ। ये चुनाव कैसे देख रहे हैं? चुनाव टाइट है, फंसा हुआ है इसमें? हाँ, चुनाव तो थोड़ा टाइट है जी, लेकिन लोकदल के साथ आने की वजह से हमें बहुत ही मतलब भाजपा को बहुत सारा मिलेगा, जयंत जी की वजह से। आपको लगता है? हाँ जी। चुनाव ये फंस क्यों गया है? क्यों लग रहा है ये चुनाव? ये दरअसल में तीनों कैंडिडेट ऐसे हो गए, तीनों ही एक तो हिंदू कैंडिडेट हो गए, और जी क्या नाम उसका, कुछ वोट वैसे बट गया, कुछ हरिंदर मलिक पर चला गया, कुछ वैसे वो हो गया। लेकिन हम तो जो है मोदी जी के वोट देंगे। मोदी जी को? मोदी जी। बालियान जी इतने वो नहीं है, पर मोदी जी नहीं, बालियान जी भी इतने हुए हैं। बालियान जी भी एक विकास पुरुष हैं, उन्होंने यहाँ से बहुत विकास करा। सारी सड़क हमारी, चाहे मील की हो, चाहे शहर की हो, चाहे हाईवे हो, बना दिया। हाँ, बना दिया। गुंडागर्दी योगी जी की, उससे सब खत्म है। अच्छा, जो चीज हमें चाहिए थी वो हमें सब चीज मिल रही है, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो फिर मोदी जी चाहिए ऊपर। चुनाव फंसा हुआ है? फंसा हुआ आज यहाँ, टफ चुनाव है, टफ चुनाव जी। पर लगता है बालियान जी निकाल लेंगे? हाँ जी, लोग दल गए 100% निकाल लेंगे जी। जयंत चौधरी 100% निकाल लेंगे जी। निकाल देंगे? हाँ जी। इतना थोड़ा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है जी, बताएं? कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? ये जो जयंत चौधरी का जो गठबंधन हुआ है उसकी वजह है। इसकी वजह से आपको लग रहा है, इसीलिए निकाल देंगे? 100% निकाल देंगे। वेस्टर्न यूपी में कम से कम 3-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे रहे जहाँ जाट बहुल क्षेत्र है, और वहाँ जाट का एक प्रभुत्व रहा है पहले से। लेकिन अदर सीट्स ऐसी हैं जिनमें लोकल पॉलिटिक्स कम से कम पिछले 2-3 चुनाव में तो ये फैक्टर रहा है कि पहले चाहे राम मंदिर का फैक्टर रहा हो, उसके बाद में वो थोड़ा चेंज हुआ, तो उसके बाद में जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए, वो बड़ा फैक्टर बना। तो उससे एक जो डिवीजन हुआ पूरे वोट का, वो सांप्रदायिक आधार पर डिवीजन, और सांप्रदायिक आधार पर डिवीजन होने का फायदा बीजेपी को मिला, और एकदम क्लीन स्वीप उसने किया। इस बार थोड़ा मुझे लगता है कि उस तरह के फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं। इस बार आपको नहीं लगता सांप्रदायिकता ज्यादा है या कास्ट ज्यादा? नहीं, सांप्रदायिकता अपने आप में फैक्टर है, अभी भी है। मैं नहीं कहता, बिल्कुल इनकार नहीं करता इस बात से कि नहीं है, लेकिन ये है कि इस बार कास्ट फैक्टर जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावी रूप से काम कर रहा है। पूरे वेस्टर्न यूपी में? लगभग। पूरे वेस्टर्न? लगभग। This is the nerve center of Jat politics. Upper caste assertion in the backdrop of Hindu-Muslim fissures saw saffron shift post-2013. However, caste factor is now cutting through communal polarization. What's also queered the political pitch more is two strong Jat leaders facing off with each other. Sanjeev Balyan versus Harinder Malik from the Samajwadi Party under the banner of the India Alliance. चुनाव कैसा चल रहा है मलिक जी? चुनाव ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो जनसंपर्क ने गति पकड़ी है। अभी गति पकड़ी है, पर 9 दिन में तो वोट है। हाँ, तो चुनाव जीत जाके हम लोग तो सन 1978 से जनता के बीच में ही रहते हैं, तो हमें कोई चुनाव का ज्यादा बहुत वो नहीं होता। अब जो है, अब थोड़ा चुनाव का जोश बढ़ा है। ये तो जनता का और सत्ता का चुनाव है। जनता मेरे साथ, सत्ता उनके साथ है। मलिक जी, पिछली बार 19 में जब सपा, बसपा, आरएलडी इकट्ठे हो गए थे, तब ना हरा पाए संजीव बालियान को। इस बार क्या अलग कर रही है? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, संजीव बालियान को राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। ही इज नॉट ए पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल पर्सन। 2013 में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, दंगा हुआ, तो दंगे के बाद 2014 में ही एकदम चुनाव आ गए। वो लाशों के ढेर पर खड़े होकर के पार्लियामेंट चले गए। 2019 में बदकिस्मती से चौधरी अजीत सिंह जी, जो बहुत बड़े किसान नेता थे, सज्जन व्यक्ति थे, बड़े नेता थे, वो चुनाव लड़े। इन्होंने सब कुछ किया। उनकी पुत्र वधू के काफिले पर हमला किया, पोलिंग एजेंट्स पर हमला किया, सब पर हमले किए, और हमारे लोग जेल गए। जो हमारे समर्थक थे वो जेल गए। चौथ साहब बड़े नेता थे, मैं बड़ा कार्यकर्ता हूँ।
आपको जितने लोग मिलेंगे या हजारों लोग होंगे, आप किससे पूछ लो, वो हरिंदर कहेगा या ज्यादा खुश होगा मलिक साहब कहेगा। नेताजी कोई नहीं कहने का हमें, नेताजी कोई नहीं कहेगा हमें। अब की बार जनता का आदमी इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। मेरे विचार शायद रात को नींद में भी उछलते होंगे, हरिंदर आ लिया, हरिंदर आ लिया। यहाँ पर मुजफ्फरनगर ने सपा का बटन तो बहुत टाइम से नहीं दबाया है और नहीं दबाया है अगर लोकसभा में आप देखें इस बार क्या अलग होगा? मैं आपको सच बता रहा तो हूँ, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होता है। मैं सच बता रहा हूँ, ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है, यहाँ आज की तारीख में चुनाव जो है, आप पता कर लीजिए सब जगह, चुनाव में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गौण है, जाति का मुद्दा गौण है और धर्म का जाति का दोनों मुद्दे गौण है। यहाँ केवल एक है, सम्मान और अपमान, अहंकार और संस्कार। ये पश्चिम के आदमी की नियति है। पश्चिम का आदमी आपको अपनी गाड़ी दे देगा, अपना वस्त्र दे देगा, कुर्ता उतार देगा, कहा करते हैं भाषा में, कुर्ते में जेब हो, यानी कि खजाने सहित कपड़ा दे देगा आपको, अगर आप प्यार से कहेंगे, सम्मान के साथ कहेंगे। ये धमकाता है सबको, अपमानित करता है। इसलिए आज जितना मेरे साथ जाट है, उससे ज्यादा मेरे साथ राजपूत, गुजर और कश्यप और आपका सैनी, पाल, ये मेरे साथ ज्यादा है, ब्राह्मण ज्यादा है और वो मेरे साथ नहीं है। मैं ये बता रहा कि हाँ, तो हम लोगों ने प्रयास करके मुद्दे गौण करते, वो तो जनता और सत्ता की लड़ाई रहेगी। अपने खाते दे दो। क्या कह रहे हो जीताओ? जो अभी इसने प्रधानमंत्री ने घोषणा करी थी, अब जो ये ईडी छापे मारी धन आ रहा, यू सब गरीबों को बांटा जाएगा। मैं तो खाता खुलवाया, मगर बात उसमें 20-30 लाख है ना जी। जाट ह्यूमर एट द बेस्ट। कहूँ भाई कभी मजाक की दिया नहीं स्टेटमेंट, ये प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया नहीं के दिया। हाँ, जो ईडी का बोला। अब मैं ईडी का ही बताया, मैं क्या अपना बताया। इस बार क्या लग रहा है? कहीं का मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर में हारेगी बीजेपी और क्या लगेगा यहाँ? यहाँ तो कुछ लगता नहीं। पर 2019 में नहीं हारी, जब सपा बसपा और आरएलडी इकट्ठे लड़ लिए। टाइम खराब भी आया करे जी, बुआ करे, समय बलवान हो, समय सब कुछ करा दे, और समय नहीं कराए बहुत सरकार आएगी और चली गई। इस बार क्या अलग हो रहा है? मैं बता तो रहा, सपा जीतेगी। पर क्या अलग हो गया इस बार जो 19 में ना हुआ? जो 19 में ना कर वोट घनी है, वोट ही तो जिताओगे और क्या हमारे तुम हरा देंगे जी। वोट कभी घनी मिलेगी, वो कोई जीत जाएगा। सपा को पहले कभी वोट दिया है? ना कभी नहीं दिया। कभी नहीं दिया? हमारे गांव में तो कभी दिया ही नहीं। इस बार क्यों दे रहा है? हरिंदर मलिक अच्छा कार्य करता है, अब बढ़िया कार्य करता है, सबकी बात सुने। पहले 19 में किसको वोट दिए थे आप? 19 में आरएलडी को दी थी। आरएलडी को। हैंड आपने किसको दिया? अजीत सिंह को वोट दी थी जी। जी हाँ। और 14 में? 14 में संजीव बालियान को वोट दी थी। संजीव बालियान को दी थी। इस बार किसको देंगे? बताइए मत, चलिए ये बता दीजिए कौन पसंद? नहीं, हरिंदर मलिक पसंद है जी। क्यों पसंद? हरिंदर मलिक इसलिए पसंद है क्योंकि पश्चिम की आवाज उठाने वाले केवल एक ही हैं और चौधरी चरण सिंह के शिष्य हैं ये। पर जो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं वो तो जाकर बीजेपी के साथ रहे ना। नहीं, आप एक बात बताओ, वो तो उनकी अपनी फैसले की बात है। चौधरी साहब ने ये फैसला ठीक नहीं किया, आगे आने वाले समय में उनको नुकसान रहेगा। और ये जिस गांव में आप हैं, मैम, यहाँ पर 80-90% वोटिंग जो है ना हरिंदर मलिक का है। यहाँ पर इस मोटिव में आपने किसको वोट दबाया था 19 में? अजीत को। आरएलडी हैंडपंप। इस बार साइकिल पे। साइकिल पे क्यों? आपका पूरा एरिया साइकिल पे है। क्यों? बढ़िया नेता है, झूठ नहीं बोलता कभी भी। हरिंदर मलिक कभी झूठ नहीं बोलता, ना कोई पार्टीबाजी करता गाँव में। Muzaffarnagar, a deeply patriarchal society. The women folk here behind a veil. महिलाओं के लिए जो उत्तर प्रदेश है वो कैसा है? अभी आपका जो शहर मुजफ्फरनगर है कैसा है महिलाओं के लिए? वो भैया घर में बैठ रहा है ना, क्या पता बेचारे को, हम भी घर में। हाँ? हरियाणा की है। नहीं, मैं मुजफ्फरनगर की बात कर रही हूँ ना, कैसा है? हाँ ठीक है। One of the outliers here, Dadi Sombiri,
the village pradhan, and a clutch of women who, after much coercion, decided to speak up. दादी कैसा चल रहा है चुनाव? बढ़िया चल रहा, चुनाव होगा बढ़िया। और चुनाव संजीव बालियान जीतेगा। संजीव बालियान जीतेगा। और ये क्या कह रहे थे कि जाट बट गए? जाट झगड़ा हो ना। संजीव बालियान भी जाटी है? वो भी तो जाटी है। ना कहना ना, ये कह रही थी कि जाट बट गए इस बार। जाट का झगड़ा हो रहा। हम तो हरिंदर में लिख के, हाँ हम तो हरिंदर में लिख हम के, तो हरिंदर में लिख के, हम तो सारे बीजेपी क्यों पसंद है? नहीं, कुछ काम बढ़िया कर रहा है। क्या काम? चोरी चोर चार बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं है। बताओ क्या सही काम? बस गुंडागर्दी सही करी, बस इतनी बड़ी बात सही कर दी। हाँ, गुंडागर्दी खत्म कर दी, बस और कुछ नहीं। भुखमरी तो ला दी, भुखमरी ला दी, पर भुखमरी तो ला दी। नो बताओ, एक गुंडागर्दी खत्म करने से थोड़ा एक भुखमरी आ गई तो भूखे मरेंगे बेचार। पर ये मानते हो कि जो हाँ गुंडागर्दी बात है, यह तो बात सही है। ये सही है, यो सही करा, यो सही करा। But with the young first-time voters at the Government College of Muzaffarnagar, it's Modi who is still a vote catcher. बीजेपी को ही वोट करूंगी, और लेकिन वो मेरे वोट करने का रीजन है कि सेफ्टी पर्टिकुलर मैंने जो अब तक पॉइंट फील किया है कि ये इस पार्टी के अंदर जो सेफ्टी है वो ज्यादा अच्छी है, महिलाओं के लिए ज्यादा अच्छी है। हिंदू मुस्लिम का आजकल बहुत चलता है, कास्ट वाइज। तो ये मुजफ्फरनगर में तो हिंदू मुस्लिम बहुत चलता है, बहुत चलता है, ये बहुत ज्यादा। वो नहीं होना चाहिए, ड्रॉबैक लगता है, नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए ड्रॉबैक है? हाँ, ये नहीं होना चाहिए। जुनैद, क्या सोच के वोट करोगे इस बार? तो पहले ये है कि हिंदू मुस्लिम जो है ये खत्म हो जाए। मुजफ्फरनगर में तो बहुत होता है जी, यही ज्यादा है। 13 से तो यही सुना आ रहा है हमने, हर चुनाव हिंदू मुस्लिम का ही होता है। असल में जब कोई चुनाव होता है तो उससे पहले इस तरह का तड़का डालना जरूरी है। आपको लगता है? जी, मुझे इस बार हो रहा है? जी, इस बार तो ऐसे कह नहीं सकते हैं, इस बार हो जाए, लेकिन क्या पता हो जाए इस तरह का। अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है। आपके लिए एक मुद्दा है, ये आप सोचते हैं, आपके जहन में रहता है कि मतलब रिलीजन पे डिवाइड नहीं होना चाहिए? जी जी बिल्कुल, ये होना नहीं चाहिए। दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा? दूसरा मुद्दा ये है कि जिस तरह के आजकल का हमारा जो युवा है, ये अब सब पढ़ रहे हैं, सब चाहते हैं कि हम अच्छे मतलब नौकरी पे जाएं, कोई किसी लाइन में, कोई किसी लाइन में। तो अब हमारे चाहने से तो कुछ नहीं होने का, लेकिन वो सब तो गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन उनका भी उनकी भी बात माननी जरूरी है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं सर्विस दे। और बेरोजगारी? जी जी, बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा है? जी जी। As we leave Muzaffarnagar, this belt, in all its sun-kissed tranquility, history knows, mixed in its soil is the blood of communal politics, covering an election, closing the show on a line that inspires hope, even if it be the naivety of youth. This time, this election should not be Hindu-Muslim. Let this be for Muzaffarnagar. Let them vote only for Muzaffarnagar.